So, good morning student, welcome to EduFly JEE NEET. So, today we are going to discuss 3rd September paper, morning shift JEE mains. So, start with this question. A pressure inside the two soap bubble, it is given that P1 is 1.01 atmosphere and P2 is 1.02 atmosphere. Find out the ratio of their volume. तो आपको क्या करना है? आपको करना है, देयर आर 4 ऑप्शन इज गिवन. तो P1 एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकाल लो. आपको पता है कितना हो जाएगा 0.01, चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1. अगर P2 एक्सेस की बात करें तो इट शुड बी 0.02. ऑलराइट, अब यहाँ पे P1 बराबर 40/R. P1 की जो वैल्यू है एक्सेस प्रेशर की, डेट इज 40/R1 एंड इट्स वैल्यू इज 0.01. 40 surface tension should be same divided by R1 and 0.02 that is 40/R2. या यूँ कह सकते हैं R1/R2 का जो रेशियो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02 इट इज़ नथिंग बट R2/R1 and its value is 1/2 या R1 equal to 2R2. R1 equal to 2R2. In this question it is asking for ratio of their volume. आप जानते हो the soap bubble should is in spherical in shape, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³ या यूँ कह सकते हो V1/V2 इज नथिंग बट R1³ and you know the R1/R2 is nothing but 2. It means their ratio of their volume ratio should be 2 का क्यूब and its value is 8:1. तो which option is correct? 8:1 is the correct option. तो आपको सिंपल क्या करना था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बट यू हैव टू फाइंड आउट देयर वॉल्यूम रेशियो. पहले एक्सेस प्रेशर निकाला, एक्सेस प्रेशर के बाद रेडियस का रेशियो निकाला, फिर वॉल्यूम का रेशियो निकाला. ऑल राइट. सो नेक्स्ट इज इट इज गिवन in this problem, it is given that a tri-molecule of gas arranged as shown in the figure and atom is concentrated on the vertices of this triangle. It is find out internal energy of the system at temperature T is asking for internal energy. You know very well internal energy is nothing but F/2 into N into R into T. So for tri-molecule of gas, the number of degree of freedom is equal to 6. Non-linear, in case of degree of freedom equal to 6. So place the value of 6, number of mole equal to 1. That is 6/2 into 1 into R into T. So answer is 3RT. Answer is internal energy of the system of gas equal to 3RT. Option A is correct. So next problem, in this question it is given that the charge Q is 1 microcoulomb is moving with velocity of 4I cap plus 6J cap plus 3K cap in a uniform magnetic field and its value is 3I cap plus 4J cap minus 3K cap into 10 to the power minus 3 Tesla. The force experienced in the factor of 10 to the power minus 9 Newton is. There are 4 options given. Simply you know the formula of magnetic field. Magnetic force experienced by the particle is nothing but QV cross B. QV cross B. And its Q value is 10 to the power minus 6. Velocity in the factor of 10 to the power minus 3. And V cross B, you have to find out V cross B, I, J and K. V cross B, what is the velocity factor? यहाँ पे 4 है, 6 है, 3 है and B factor is 3, 4 minus 3. So this the factor is given that 10 to the power minus 9. So you have to only find out the cross multiplication of V cross B. So I into, इसको बंद करो, 6×3 18, 18 माइनस यहाँ पे माइनस 12, 4×3 12. सो दैट इज 12. ऑल राइट.
देन माइनस जे इंटू, अब इसको बंद कर लो, 4 तिहाई 12 माइनस 12 माइनस 3 3 जा 9 प्लस के इंटू, इसको बंद कर लो, 4 4 जा 16 माइनस 6 3 18। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितना है, माइनस 18 माइनस 12 दैट इज माइनस 30, सो ओनली माइनस 30 एंड माइनस 12 माइनस 9 माइनस 21, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 21 जे कैप, दिस वन इज आई कैप एंड लास्ट वन माइनस 2 के कैप, माइनस 2 के कैप। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सिंपली दिख रहा था बेटे, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आपको सिंपली बहुत आसान सा F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बीच करना था। अगर आपको फार्मूला, इफ़ यू हैव रिमेंबर द फार्मूला यू कैन इजिली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो क्वेश्चन नंबर 4, in YDSC setup it is given that a wavelength is used 500 nanometer and its distance is, यहाँ पे इसकी दिया है 0.05 मिलीमीटर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू आपके पास होता है लैम्डा बाई डी, सिंपल लैम्डा बाई डी, एंड लैम्डा इज गिवन दैट 500 नैनो 10 to the power minus 9 divided by 0.05 10 to the power minus 3 and its value tend to be 10 to the power minus 6 and this would be 10 to the power minus 2, या you can write it 10 to the power plus 2 and its value is into 10 to the power 6। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 1 जा 5, 4 10 टू द पावर माइनस 2। ये वैल्यू आई है आपके पास रेडियन में, डिग्री में वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.57, 0.57 आस्किंग फॉर इन डिग्री एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आपको सबको आता है। इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ nth ऑर्बिट, इट इज़ गिवन दैट माइनस 13.6 Z बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज आस्किंग फॉर हाइड्रोजन एटम, बोल रहा है कि फर्स्ट से थर्ड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी नीडेड पूछ रहा है। तो E3 पहले निकालेंगे फर्स्ट से थर्ड में, तो यहाँ पे माइनस 13.6, Z वैल्यू इज 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन इज नथिंग बट 3 का स्क्वायर, ऑल राइट। एंड E2 E1 निकाल लें, या E2 दिस वन इज E1 माइनस 13.6, Z वैल्यू इज 1 अपॉन 1 स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस वुड बी माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 9, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 1.51 होपफुली आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा था, एनर्जी नीडेड, तो एनर्जी नीडेड इज नथिंग बट E2 माइनस E1। तो आपके पास E2 की वैल्यू क्या है सर, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फिर माइनस माइनस प्लस 13.6, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी 13.6 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू टेंड टू बी आउट होपफुली 12.09, 12.09। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इट इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही आसान सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। इन दिस क्वेश्चन एन इलिप्टिकल रिंग ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस इज गिवन A and B. If it rotate about diameter with angular velocity omega in the uniform magnetic field B, and this ring consists of the resistance of R, asking for average power produced by the resistance, average power produced by the ring is। तो आपको पता है कि जो EMF होता है NBA ओमेगा cos omega t, you know this formula, NBA omega cos omega t, and you know the power, average power is nothing but V square by R, simply V square by R, and EMF the minus EMF minus d phi by dt।
तो ये ईएमएफ दिया है, यहाँ पे वैल्यू जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो सर इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर बी स्क्वायर। एरिया इज नथिंग बट अगर आपके पास इलिप्टिकल है, सेमी मेजर एक्सिस क्या दिया है, ये ए दिया है, ये बी दिया है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, अगर इसको बात करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। अब यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की, इसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। तो अगर इसकी एवरेज बाई 1/2 रखते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर छोटा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो आपके पास देखो कौन सा आंसर मैच हो रहा है, 2r वाला आंसर मैच हो रहा है, एन स्क्वायर बी स्क्वायर पाई ए स्क्वायर, इसका पाई ए भी होता है तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, पाई होता है एरिया तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई ए भी होता है एरिया, तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड बी स्क्वायर। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 में आया था, बहुत आसान सा ग्राफ का क्वेश्चन था। कह रहा है एक बॉडी है, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड, फेंकी जा रही ऊपर, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिलेशन पूछ रहा था v विद रिस्पेक्ट टू t। तो सर आपको 4 ग्राफ दिए थे vt ग्राफ, कैसे निकालते हैं भाई, सर इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपल है, क्या करना है, v बराबर u माइनस जी टी होता है। अब ये फेंकी जा रही है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है, इसमें ऐसा नेगेटिव स्लोप वाला कौन सा ग्राफ है, देखो ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी फिर वेलोसिटी घटेगी, आपको सिंपली दिख रहा है नेगेटिव एक्सिस स्लोप नेगेटिव ग्राफ वाला जो है ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले टाइम बढ़ेगा फिर टाइम घटेगा, ये तो सरासर गलत है। यहाँ पे ऐसा वेलोसिटी मैक्सिमम है फिर वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये तो ऊपर नीचे दोनों जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, हमेशा नेगेटिव होगा। यहाँ से यहाँ तक यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बिकम्स 0, देन इफ़ यू टेक दी velocity is upward, going upward is positive, so downward is negative, so option C is correct. So next question, question number 8, it is given that there are two spheres x and y. This is isolated sphere, they are separated a very large distance, and x is having charge of 12 microcoulomb and having the radius of 2r/3, and y is having the charge of -3 microcoulomb having radius r/3. If they are connected to each other, what will be the charge on x and y? There are 4 options is given, so you know very well the conservation of charge. If these two are connected with the help of this key, so what happened, the charge will be net charge q equal to q net equal to q1 plus q2, conservation of charge, and this value is 12 minus 3, that is 9 microcoulomb, this is net charge. तो ऑप्शंस आप कैसे आप करोगे अब यहाँ पे, सो यू नो द फार्मूला ऑफ q1/q2 इज नथिंग बट r1/r2, इट विल बी द रेशियो ऑफ r1/r2, r1 इज गिवन, q1 इज नथिंग बट r1 की वैल्यू यहाँ पे 2r/3 डिवाइडेड बाई r/3, so this will be cancel out, this will be cancel out, 2:1, 2:1, it means q1/q2 is nothing but 2:1, या q1 is equal to 2q2, so q1 की वैल्यू 2q2, ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि q1 प्लस q2 बराबर 9 हो, तो q1 की वैल्यू आपके पास अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो q1 की वैल्यू टर्न टू बी आउट 6 माइक्रोफेरेड एंड q2 टर्न टू बी आउट 3 माइक्रोफेरेड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, q1 टर्न टू बी आउट, जितना यहाँ पे q1 की वैल्यू 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगी और q2 की वैल्यू 3 माइक्रोफेरेड। ऑल राइट, सो मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 9, इन दिस क्वेश्चन it is given that a diode is having the potential across the potential is 0.5 volt and maximum current in this circuit
would be 10 milliampere and it is connected by external battery that is 1.5 volt. So you need to find out what would be the value of resistance. You know the formula. अगर यहाँ पे इस सर्किट में चलें, अगर फार्मूले के हिसाब से I दिया है तो नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज वुड बी पॉजिटिव. सो प्लस 1.5 वोल्ट, दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन नेगेटिव, माइनस प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव माइनस 0.5 एंड दिस वैल्यू माइनस आई आर equal to 0. So this value tend to be out 1 equal to I into R. So R equal to 1 divided by I, and I is given maximum current drawn by this circuit is 1 milliampere. So 1 upon 10 milliampere, 10 to the power minus 3, तो 1 by 10 to the power minus 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 ओम. कितना 100 ओम. तो योर आंसर इज ऑप्शन ए 100 ओम. आपको सिंपली एक सेमीकंडक्टर का कहो, चाहे आप यूं बोल दो डायोड, सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स का ही है. अगर आपको बेसिकली सर्किट में लॉ अप्लाई करना आता है, केवीएल अप्लाई करना आता है, तो आप यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. ऑलराइट, सो विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. सो इन दिस प्रॉब्लम व्हेन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन अ मेटल सरफेस लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दो अलग अलग वेवलेंथ की यहाँ पे लाइट गिराई जाती हैं मेटल सरफेस पे, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स. फाइंड आउट वर्क फंक्शन, फाइंड आउट वर्क फंक्शन. तो आपको क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ये होता है बेटी. तो काइनेटिक एनर्जी ke1 की वैल्यू k थी, तो यहाँ पर लैम्डा 1 था. ठीक है सर. अब सर ke2 3ke है, तो hc डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 इंटू -5. अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में. तो डिवाइडेड बाई अगर यहाँ पे 3ke करते हो, hc अपान लैम्डा 2 माइनस वर्क फंक्शन, यहाँ पे ये डिवाइड करते हो तो ke कैंसिल, तो 1/3 इक्वल टू सिमिलरली hc बाई लैम्डा 1 माइनस वर्क फंक्शन 5. लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी दिया है 50 नैनोमीटर. ऑलराइट, डिवाइडेड बाई hc बाई लैम्डा 2 कितना दिया बेटे 20 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन 5. अब अगर यहाँ से ध्यान से देखें, h पता है आपको, c पता है, नैनोमीटर, ये सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. h पता है, c पता है, तो आपके पास कौन सा आंसर सही है, बी आंसर इज करेक्ट, 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपको सिंपल बेसिक्स का सा क्वेश्चन था कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. यहाँ पे देखें दिया है अ हॉलो सिलेंडर ऑफ लेंथ L, इनर रेडियस दिया है बेटे यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 और लेंथ L दिया है. फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, और सिलेंडर की रजिस्टिविटी पता है. तो आपको रेजिस्टेंस बराबर रो L ओवर A, ये पता है रो L ओवर A. अब सर यहाँ पे अगर ध्यान से देखो एरिया सिलेंडर का, तो सर यहाँ पे रो dr का थिकनेस ले लेंगे और एरिया क्या हो जाएगी सर पाई r स्क्वायर. कहाँ से कहाँ तक हॉलो सिलेंडर है सर, इट स्टार्ट फ्रॉम R1 टू R2. तो देखो क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही हैं, पाई r स्क्वायर L जो है यहाँ पे एरिया हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हो जाएगी पाई आर एल, पाई इंटू आर इंटू एल. तो यहाँ पे क्या है, रो डिवाइडेड बाई पाई आर कॉमन हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ओवर, यहाँ पे पाई रो अपान पाई एल, डी आर ओवर एल, डी आर ओवर आर. तो इसको एल एन आर बोल सकते हो ना, R1 टू R2, देन रो अपान पाई एल, यहाँ पे एल एन ऑफ आर, इट इज लोअर लिमिट R1 टू R2. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, रो अपान पाई एल, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई आर एल। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2 पाई आर, एरिया कितना हो जाता है 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ पे रो अपान 2 पाई एल R2 माइनस R1, यहाँ पे आ जाएगा ln R2 माइनस ln ऑफ R1 log A माइनस log B log A बाई B। आपको दिख रहा है कौन सा आंसर है, L अपान 2 पाई, यहाँ पे रो अपान 2 पाई L ln ऑफ R2 बाई R1, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा सिलिंड्रिकल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ऑल राइट, a radioactive substance undergoes 9/16 after T time, ठीक है। how much simple remains undecayed at T half, आफ्टर T हाफ पे ये वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता है n इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये बेसिक फार्मूला है इन द केस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पहला मान लो T1 है, तो फर्स्ट यहाँ पे T मान लोगे और दूसरे में n डैश की जो वैल्यू है वो यहाँ पे n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ, तो ये दोनों डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी n डैश अपान n0 n अपान n0 की पावर 1/2। ये दिया है आपको n अपान n0 की वैल्यू कितना दिया है 9/16, ऑल राइट, इसका पावर 1/2, तो देन यू विल गेट 3/4। तो आपके पास n डैश अपान n0 की जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। यस, ऑल राइट, तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है क्यूब इज देयर एंड एक्सटर्नल प्रेशर P applied on the each side of the cube at the temperature of 273 if coefficient of linear expansion अल्फा दिया है और कह रहा है कि बल्क मॉडुलस ऑफ दिस मटेरियल इज के, कह रहा है कि टू ब्रिंग द क्यूब इज इन इट्स ओरिजिनल शेप या साइज बाई टेम्परेचर T इज, T की वैल्यू पूछा था इसमें, बहुत आसान सा, बहुत बेसिक्स का ये, या यूँ कहें कि आपको अगर लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला अगर आता है या यूँ कहें बल्क मॉडुलस जैसा आपको पढ़ाया गया है, जो बल्क मॉडुलस के होता है वो सर डेल्टा V बाई डेल्टा P चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाई डेल्टा V बाई V नेगेटिव होता है सर। अब यहाँ पे आपके पास सब वैल्यू पता है, तो डेल्टा V बाई V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना -P बाई K चेंज इन प्रेशर। अब हो क्या रहा है, दबा तो जा रहा है, अब लेकिन ओवरऑल क्या है कि इसमें अगर कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं कि इसका जो ओरिजिनल शेप है वो उसमें कोई चेंज ना हो। इसका मतलब सर डेल्टा V बाई V एक कंप्रेशन की वजह से जो दबाया जा रहा है और डेल्टा V बाई V जो एक्सपेंड हो रहा है जो टेम्परेचर बढ़ाने से, उसका नेट रिजल्टेंट क्या है, 0 है सर। अगर उसका नेट रिजल्टेंट 0 है तो माइनस डेल्टा P बाई K। अब यहाँ पे 3 अल्फ़ा डेल्टा T, यहाँ पे गामा इन टर्म्स ऑफ गामा आपने पढ़ा होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी डेल्टा V बाई V नथिंग बट गामा डेल्टा T। अब गामा के जगह पे 3 अल्फ़ा लिख सकते हैं बराबर 0। अब यहाँ से डेल्टा T की वैल्यू पूछी थी तो आपके पास -P बाई K बराबर कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा डेल्टा T। तो डेल्टा T चाहिए था, तो डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई 3 अल्फ़ा K। ये आपके पास आंसर था। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक आता है बल्क मॉडुलस में क्या रिलेशन होता है, नेट कैसे होगा, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे एक इस तरीके से एक अरेंजमेंट बनाया था। बेसिकली 3 कैपेसिटर लगे थे 15 माइक्रोफैरेड का, C2 पूछ रहा था, C1 C3 इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे 8 माइक्रोफैरेड का था, इसके क्रॉस पोटेंशियल 20 वोल्ट है।
यहाँ कह रहा है टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो 750 माइक्रो फैरेड है, टोटल चार्ज 750 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो हो रहा था। तो यहाँ बोल रहा है कि C2 पे कितना चार्ज फ्लो होगा। एक बात बताओ, जो भी चार्ज फ्लो होगा वो जाएगा तो ऐसे पॉजिटिव से निकलेगा सर। यहाँ पे Q2 मान लेंगे, यहाँ पे Q1, तो मतलब सर Q2, यहाँ पे Q2 मान लो और यहाँ पे Q1 मान लो, तो Q2 प्लस Q1 की जो वैल्यू है 750 माइक्रो कूलम्ब है। अब देखो, अगर आपको पता है कि Q बराबर CV, यहाँ पे जो भी Q बराबर आपने क्या पढ़ा है सर, C इंटू V। C पता है कितना, 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 20, तो ये कितना 160 माइक्रो कूलम जो है वो क्या है Q1 की वैल्यू, तो 160 माइक्रो कूलम Q1 है। Q2 पूछ रहा है ये बराबर कितना 750 माइक्रो कूलम, तो Q2 की जो वैल्यू आ गई 750 माइनस 160, तो वैल्यू कितना आएगी ये 590 माइक्रो कूलम। तो बहुत आसान सा चार्ज कंजर्वेशन पे है। बेसिकली चार्ज जो है यहाँ पता है कि C पता है, V पता है, तो चार्ज बता सकते हो। टोटल चार्ज यहाँ से निकल रहा है 750, तो इजीली आप बता सकते। तो करेक्ट आंसर क्या है 590। बेटे एक सर्किट दिया था, ये R है, ये XL है, ये XC है, ये सब दिया है। R की वैल्यू सर 4 है, ये 7 है, ये 4 ओम रजिस्टर है। पूछ रहा है हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल दिया था 100 जूल पर सेंटीग्रेड। पूछ रहा है कैलकुलेट टाइम इन कितना लगेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 10 सेंटीग्रेड। ये पूछ रहा है क्या टाइम लगेगा। तो आपको क्या पता है, जेड पहले निकाल लो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ज़्यादा कौन है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 रूट 5, रूट 25 का मतलब 5 ओम इसका क्या हो गया इम्पीडेंस हो गया। अब आपको अगर RMS वैल्यू पता हो जाए, RMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर बराबर I0 बाई रूट 2 इंटू जेड। अब यहाँ पे I0 की वैल्यू क्या दिया है सर 25 अपान जेड की वैल्यू 5 इंटू रूट 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 5 बाई रूट 2, या रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या 5 बाई रूट 2 ही रहने दो, 5 बाई रूट 2, या आपके पास IRMS आ गया। क्या आ गया IRMS। अब हीट के बारे में क्या जानते हो, I स्क्वायर RT, जो भी वैल्यू होगी IRMS I स्क्वायर R इंटू डेल्टा टी इक्वल टू MC डेल्टा टी। I स्क्वायर RT ये टाइम है बेटे, यहाँ पे यही पूछ रहा है। I स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपके पास, इट टेंड टू बी आउट, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गया कितना सर 25 बाई, ये वैल्यू रख दो 5 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितना है सर 4 इंटू टाइम पूछ रहा है, इंटू टाइम पूछ रहा है। MC हीट कैपेसिटी दिया है 100, M इंटू C हीट कैपेसिटी होता है डेल्टा T 10 सेंटीग्रेड। तो यहाँ से T की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 बाई 2 इंटू 4 इंटू T इक्वल टू 1000, या T बराबर 2 2 जा 4, 25 से डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइडेड बाई 50, तो आपके पास आंसर कितना है 20 सेकेंड आएगा। कितना सेकेंड 20 सेकेंड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज 20 सेकेंड। एक सेटअप दिया था, ये बोल रहा था कि एक देयर इज अ साइड लेंथ ऑफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, ऑफ हिज साइड नंबर ऑफ टर्न इज 50,
तो यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस ABCDEF सेटअप की वजह से क्या होगा। तो सिंपल करंट सर सेम चल रही है, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट की वैल्यू आपको 50 टर्न है, और एक पे अगर निकाल लो तो सर 6 से मल्टीप्लाइड, जाहिर सी बात है हर जगह अंदर, एक जगह ही अगर ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज तो सबकी वजह से आउटवर्ड है। तो 6 म्यू नॉट बाई 4 पाई म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी सर 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में इसको चेंज कर लेंगे। कॉस थीटा 1 यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, एंगल सबटेंडेड कितना है भाई ये वाला वायर, यहाँ पे सर कॉस 30। अब आपको पता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहाँ पे वैल्यू ऐसे थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, थोड़ा बढ़िया लिख दें इसको। सर बी बराबर 6 वायर है, 50 टर्न है सर, ये तो ये हो गया बेसिक। अब यहाँ पे क्या है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आई बाई आर, तो यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर बाई 100 कॉस 30 की वैल्यू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहाँ पे आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 एंगल जितना भी सबटेंड करेगा, तो यहाँ पे 60, यहाँ पे सर 60 ऐसे देखेंगे, एंगल कितना सबटेंड करेगा सर, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, तो 60 ये 60 ये, थोड़ा सा यहाँ पे एक करेक्शन था, 10 सेंटीमीटर ये भी है 10 ये भी है, तो यहाँ पे इसका हाफ कितना हो जाएगा 5, तो ये अगर 5 है ये 10 है तो ये 30 डिग्री सबटेंड करेगा। तो ये आपने पढ़ा है साइन थीटा साइन 30 कॉस 30 आपने कर दिया ठीक, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 की वैल्यू एंगल कितना सबटेंड कर रहा है साइन 30, सर यहाँ पे भी साइन 30। अब वैल्यू रखिए 60 इंटू 50, तो सर 300 म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा बेटे 10 आई हो गया कॉस 30 की वैल्यू √3/2 साइन 30 प्लस साइन 30 1 आ गया बेटे। अगर इसको सॉल्व करो म्यू नॉट की वैल्यू आपके पास क्या पता है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई 10⁻⁻7, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ध्यान से देखो 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, फिर ये 300 1500 बटे 2 1500 बटे 4 म्यू नॉट इंटू आई √3। आंसर जो इसके फॉर्मेट में बताना था, इसके म्यू नॉट बाई पाई इंटू आई के फॉर्मेट में बताना है, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई अगर यहाँ ध्यान से देखें तो म्यू नॉट बाई पाई इंटू आई, तो बचा कितना आपके पास, अगर ध्यान से देखो तो सर ये 300 हो गया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 10 हो गया, यहाँ पे 4 है बेटे, यहाँ पे √3/2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 30, तो ये आपके पास ये वैल्यू सारी कैलकुलेट करोगे तो 500 √3 इंटू म्यू नॉट बाई आई म्यू नॉट बाई पाई इंटू आई, आपके पास इसके फॉर्मेट में आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, इसके फॉर्मेट में आंसर है, तो करेक्ट आंसर क्या है 500 √3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये इस तरीके से बताना था। बोल रहा है द मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड एट द बॉटम ऑफ दिस स्ट्रिंग, यहाँ पे 2 kg का है और जो ये रस्सी है ये 6 kg की है। तो आपको ये बताना है वेवलेंथ एट द टॉप ऑफ द स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे λ1 बॉटम पे λ1 6 सेंटीमीटर है तो λ2 बताना है। तो सर हमें पता है क्या v बराबर सर f लैम्डा, ध्यान से समझना v बराबर f लैम्डा सर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी सर, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है एक ही है, तो इसका मतलब सर v1 बाई λ1 इक्वल टू v2 बाई λ2। ठीक, यहाँ पे λ2 चाहिए था
लैम्डा टू इक्वल टू, बोल सकते हो लैम्डा टू चाहिए आपको, तो लिख सकते हो V2/V1 इंटू लैम्डा वन, V2/V1 इंटू लैम्डा वन। अच्छा, टेंशन में क्या रिलेशन है? अगर ध्यान देखो यहाँ पे टेंशन कितना है सर, T1 की वैल्यू 2 m इंटू जी होगा ना, m की वैल्यू 2 इंटू जी सर। T2 की वैल्यू यहाँ पे टेंशन कितना होगा सर? 2 kg का ये, 6 kg का ये सर, 8 g होगा। तो इसका रेशियो पता है सर, लैम्डा टू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ T2/T1 इंटू लैम्डा वन। T2 की वैल्यू कितनी आई है भाई, 8g डिवाइडेड बाई 2g इंटू लैम्डा वन कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो जी ने जी को मार दिया, 2 2 जा 4, तो 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आया, 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल, अगर आपको पता है कि स्ट्रिंग में फार्मूला ऐसे लगेगा, इसमें टेंशन का क्या रेशियो होगा, तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर इज 12 सेंटीमीटर। बेटे एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाय द अर्थ, एक सैटेलाइट है जिसकी वेलोसिटी दिया है कितना, √3/2v इंक्रीज किया जाता है, जहाँ पे v ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है, ऑफ द सैटेलाइट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम। देखो कैसे होगा सर, यहाँ से जब फेंका तो ये क्या है, √3/2v नॉट। सर जब यहाँ पे गया तो v मिनिमम हो गया, जब v मिनिमम है तो हमने मान लिया r मैक्सिमम है साहब। तो अब क्या करना है आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ पे -G(m1m2/RE), तो सर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस, मैं बोला था ना ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देखो आया है, प्लस ½ यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ½ √3/2 इंटू v², इसका स्क्वायर सर, बराबर यहाँ पे मैक्सिमम, ये दूरी मैक्सिमम यहाँ से यहाँ मान लें r मैक्स, तो G(m1m2/r मैक्स), यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ½ v मिनिमम का स्क्वायर। अब आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, या जो वेलोसिटी इंटू रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी है mvr पढ़ा है ना, तो m तो सेम है सर, v इंटू आर, यहाँ पे वेलोसिटी mvr पढ़ा है ना बेटे, तो m तो कैंसिल हो जाएगा सैटेलाइट का, तो √3/2 इंटू v, RE यहाँ पे रेडियस कितनी है, RE। अब यहाँ पे क्या है, v मिनिमम है और रेडियस क्या है, मैक्सिमम है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट r मैक्स बराबर 3RE, r मैक्स बराबर 3RE। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आपके अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 3 सितंबर वाला, इसमें ये समझें कि 2 दिन का जो पेपर था, या 2 सितंबर का मॉर्निंग और इवनिंग, थोड़ा सा उससे लेवल अच्छा था, या यूँ कहें अभी थोड़ा टफनेस बढ़ा रहा है। तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो अभी कमिंग एग्ज़ाम्स हैं, 2-3 पेपर अभी, जब 6 तारीख तक जितने भी पेपर हैं आप अच्छे से तैयारी करें, थोड़ा ये सारी चीज़ें देख करके जाएं ताकि आपको अच्छा लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।